Good morning, everyone. In this lecture, we are going to discuss about successive differentiation. Before going to this topic, we'll study about relation between y1 and y2. So for starting this topic, let us take one example. Example 1, if y equals to a cos log x plus b sin log x, then prove that x square y2 plus x y1 plus y equals to 0. What is y2 here? Double derivative of y. This is y1. Y1 means differentiation with respect to x. One time differentiation with respect to x. That means dy by dx. And y2 is d square y by dx square. So we have to prove this x square y2 plus x y1 plus y equals to 0. So what we have to do, let us consider this equation y equals to a cos log x plus b sin log x. Now differentiating this equation 1 with respect to x, we will get y1 equals to minus a sin log x, and differentiation of log x will be 1 upon x, plus b sin log x. Differentiation of b sin log x is b cos log x, and differentiation of this log x is 1 by x. Now in the denominator we have x, so x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. x y1 will be equal to minus a sin log x plus b cos log x. अब हमें ये देखना है कि प्रूफ में हमारे पास यहाँ पर क्या है, y2 भी है, x y1 की टर्म हमारे पास आ चुकी है. y2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा. सो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन सेकंड. Now differentiating this second equation with respect to x, we have d upon dx x y1 equals to minus a cos log x into 1 upon x minus b sin log x into 1 by x, differentiation of log x. So from here we'll do the differentiation. First function as it is, differentiation of y1 will be y2 plus y1 as it is, differentiation of x will be 1. This will be equal to minus a cos log x plus b sin log x upon x. Now this x आपका कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे. So this will be equal to x square y2 plus x y1 equals to minus y. माइनस वाई कहाँ से आया, ये आपका इक्वेशन 1 से. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट दिस टर्म एज y. सो x square y2 plus x y1 plus y equals to 0. So this is the proof. Now let us consider another example. We have given if y equals to 3 into e to the power 2x plus 2 into e to the power 3x, then prove that d square y upon dx square minus 5 dy by dx plus 6y equals to 0. That means this is y2 minus 5 y1 plus 6y equals to 0. That means we have to prove this. हमारे पास क्या है, y equals to 3 into e to the power 2x plus 2 into e to the power 3x. Okay, do the differentiation with respect to x. Dy by dx will be equal to differentiation of e to the power 2x will be 2 into e to the power 2x, and 3 into 2 will be 6. 6 into e to the power 2x plus again 6 into e to the power 3x. We'll take 6 as common. 6 into e to the power 2x plus e to the power 3x. Now again differentiating this term with respect to x again, we will get 12 into e to the power 2x plus 18 into e to the power 3x. Take out 6 as common, we will get this term. This term can be written as y, because we have already given this term. So when we are putting this y, we will get this equation. Left hand side equals to 6 into 2 e to the power 2x plus 3 into e to the power 3x minus 30 e to the power 2x plus e to the power 3x. After putting these values in this equation, we will get right hand side 0, which is equal to 0 in the proof. हमें ये प्रूव करना था. तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सारी टर्म्स रखी और अगर राइट हैंड साइड 0 मिल गया तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया. हमने ये किया है, सबसे पहले क्या निकाला है, y2 then y1, and put in the left hand side, you will get right hand side which is equal to 0. So this is example 2. Next is if y equals to sin inverse x,
then show that 1 minus x square d square y upon dx square minus x into dy by dx equals to 0. अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी टर्म है y2. दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट हम इसे लेके चले x y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 0. हमें ये प्रूव करना है. या तो हम इस इक्वेशन से y1 y2 की वैल्यू निकालें और लेफ्ट हैंड साइड पे रख लें, तो हमारा राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा. या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम इसका डिफरेंशिएशन करते चले गए और हमें ऑटोमेटिकली इस तरह की इक्वेशन लास्ट में मिल जाएगी सेटिंग करने के बाद और कैलकुलेशन करने के बाद. तो वो दोनों चॉइस आपके पास है. सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x. दैट मीन्स वी हैव टू डू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx इक्वल्स टू 1. Again differentiating this term with respect to x, d by dx under root 1 minus x square dy by dx equals to 0. This is first function as it is. Differentiation of this function with respect to x will be equal to d square y upon dx square plus dy by dx as it is. Differentiation of this function will be equal to 2x upon 2 under root 1 minus x square equals to 0. So after doing the calculation, we will get this equation 1 minus x square d square y upon 1 minus x square d square y upon dx square minus x into dy by dx. और जैसे मैंने अभी बताया कि इस मेथड में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. जैसे हमने y1 निकाला, y1 निकालने के बाद हमने स्क्वायर करा दोनों साइड का. इस वाले में इसका ऑल्टरनेट फॉर्म है ये, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, दोबारा डिफरेंशिएशन करना है. 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 2y1 और y1 का डिफरेंशिएशन अगेन y2, y1 स्क्वायर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 2x. दिस इज इक्वल्स टू 0. और वी कैन राइट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 0. Next example is if y equals to sine a into sine inverse x, then we have to prove that 1 minus x square y2 minus x y1 equals to minus a square y. हमें ये प्रूव करना है. दैट मीन्स हमें y1 निकालना है एंड y2 निकालना है. तो y हम लेके चलते हैं, y equals to sine a into sine inverse x. When we are doing differentiation of this y with respect to x, we will apply the chain rule. चैन रूल हमने पढ़ा हुआ है पहले. साइन थीटा, थीटा हमने क्या सपोज किया है, a इंटू साइन इनवर्स एक्स. तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करके क्या आता है, कॉस थीटा. सो कॉस a इंटू साइन इनवर्स एक्स. बट ये अंदर वाली टर्म जो है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है चैन रूल के अकॉर्डिंग. सो द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब डिनोमिनेटर में से ये टर्म हटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू a cos a sin इनवर्स x. अब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ का, क्योंकि हम यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या आया हुआ था, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy by dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर इंटू a sin इनवर्स x. अब इसमें क्या करेंगे, हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है. इस कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि y1 है, तो यानी y1 का स्क्वायर हो गया एक तरह से. तो कैलकुलेशन सिंपल लिखने के लिए, चीज़ों को सिंपल लिखने के लिए आप y1 नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं. और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. Cos square theta can be written as 1 minus sin square theta. So we have written 1 minus sin square a sin inverse x.
we can write this term as y. So this will be equal to y square. So 1 minus x square dy upon dx square equals to a square 1 minus y square. अब क्या करना है हमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन रूल. डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन आपको करना है y1 स्क्वायर का, तो 2 dy बाई डी एक्स एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन वापस से क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये कैसा आया, -2x प्लस लगाएंगे आप, इसका डिफरेंशिएशन -2x होगा, तो यहाँ पर लिख दिया है -2x एंड dy upon dx whole square as it is. Differentiation of this will be equal to -2a square y dy by dx. Now dividing every term by 2 dy by dx, we get 1 minus x square d square y upon dx square minus x dy by dx equals to minus a square y. यही हमें प्रूफ करना था. So this is the proof. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 5. इफ p स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, then we have to prove that p plus d square p upon d theta square will be equal to a square b square upon p cube. हमें ये प्रूफ करना है. दैट मीन्स ये 2 बार डिफरेंशिएशन करा है p का विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो सबसे पहले हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं. हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वेशन 1. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2p अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 2, ये डिफरेंशिएशन करके आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos थीटा sin थीटा. आप डिफरेंशिएशन करेंगे और कॉमन लेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी. दिस विल बी इक्वल टू 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos थीटा sin थीटा. सो ये हो गई इक्वेशन सेकेंड. हमें प्रूफ में क्या रिक्वायरमेंट है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर की, और अभी तक हमारे पास डी पी अपॉन डी थीटा आया है. दैट मीन्स वी नीड टू अगेन डिफरेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू थीटा. So again differentiating both sides of 2 with respect to theta, we get 2p as it is, and differentiation of this term will be equal to d square p upon d theta square plus this function as it is, differentiation of this function will be equal to dp upon d theta. तो dp upon d theta का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था. इसका डिफरेंशिएशन करके आया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज योर इक्वेशन थर्ड. अब हमें कुछ ऐसी सेटिंग करनी है इन इक्वेशन से जिससे हमें ये प्रूफ मिल जाए. इसका मतलब क्या है, आपको p का यूज करना है, यानी p आपका ये टर्म होगी p स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो हमें ये वैल्यूज रखनी है और ये थोड़ी dp अपॉन डी थीटा की टर्म खत्म करनी है. तो वो कैसे करेंगे, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय पी स्क्वायर. जो इक्वेशन हमारी थर्ड थी उसे पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dp अपॉन डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. क्यों किया ये, क्योंकि हमें p में कन्वर्ट करना है और dp अपॉन डी थीटा की रिक्वायरमेंट नहीं है. सेटिंग करने के बाद हमें ये मिलेगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे, p क्यूब डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये सारी कैलकुलेशन इसने कैसे की है, यहाँ देखिए, ये टर्म आपने एज इट इज लिख दी पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर. ओके, बाकी ये टर्म्स इसने सेटिंग करी इसमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ से देखेंगे अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो यहाँ से कुछ टर्म हमारी कॉमन आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ से आया और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाली टर्म हो गई. ठीक है, इस पी स्क्वायर की जगह इसने क्या रख दिया, पी स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी ऑलरेडी थी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, दिस टर्म एज इट इज,
माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये राइट हैंड साइड पे ले आए आप माइनस करके। फिर इसमें सारी ये कैलकुलेशन करी है आपने, ये सब सेटिंग करी है। कैलकुलेशन के बाद आपने कुछ होल स्क्वायर बना लिया। होल स्क्वायर किसका बनाया देखिए, ए स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन 4 थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इस टर्म को हम लिख सकते थे पी स्क्वायर, इस टर्म को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर। तो हमने ये वैल्यू रखी बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, this is equal to cos square theta plus sin square theta is 1, so this is equal to a square b square। p क्यूब यहाँ से कैंसिल हो गया तो हमारा बचा p प्लस डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा बचा हुआ था, अपॉन में ले गए p क्यूब। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, विल गेट द प्रूफ। क्लियर है ये? नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, ऑप्शंस इसमें दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया है। लेट द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन इन द इम्प्लिसिट फॉर्म एज y इक्वल्स टू 10x प्लस y। अब ये इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होती है? अगर इम्प्लिसिट फॉर्म को बहुत इजी वे में समझना है तो इम्प्लिसिट फॉर्म को हम बोल सकते हैं कि जो y को हम टोटल x के फंक्शन के रूप में ना लिख सकते, यानी y कंप्लीटली x का फंक्शन की तरह सेपरेट होके ना लिखा जाए, तो हम बोलेंगे उसे इम्प्लिसिट। क्या हम इस फंक्शन को लिख पा रहे हैं? y को कंप्लीटली एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पा रहे हैं, सो दिस इज द इम्प्लिसिट फॉर्म, दिस इज द इम्प्लिसिट फॉर्म। और हमें क्या करना है देन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई, हमें ये कैलकुलेट करना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ये हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। इसमें स्टेप नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y हम एक तरफ कर सकते हैं, तो tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 कन्वर्ट कर ली, इसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर y का डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमने लिख लिया dy बाई dx। dy बाई dx की टर्म एक तरफ ले गए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। So dy by dx is equals to minus 1 plus y square upon y square. This will be equal to minus y square, minus plus minus, और ये y square से y square डिनोमिनेटर में जब रखेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। हमें वैल्यू निकालनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, तो हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स डू द डिफरेंशिएशन अगेन। विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब। 1 अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो ये आया आपका माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब, और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या मिलेगा 0 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन वाई क्यूब, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने कहाँ से लिख ली, यहाँ से कैलकुलेशंस करी है, और देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आया, माइनस 2 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस वाई, दैट मीन्स योर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिमिलरली आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल 7, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर nx देन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर d स्क्वायर x अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। हमें ये करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैंने लेट कर लिया कि वाई डबल डैश, इसका मतलब यही तो है वाई का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने इसे वाई डबल डैश के नाम से लिख लिया। सिमिलरली डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर को हमने लिख लिया एक्स डबल डैश। ओके, वाई हमारे पास क्या गिवन था,
e to the power nx। क्या मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करके लिख सकती हूँ? यस, y डैश इज इक्वल्स टू n e to the power nx। दोबारा डिफरेंशिएशन किया, n स्क्वायर e to the power nx। अब हमें x का डबल डेरिवेटिव चाहिए, बट हमारे पास तो x है नहीं, तो यहाँ से x हम निकाल सकते हैं क्या? टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log जब लेंगे तो log y विल बी इक्वल टू nx log e इज व्हाट 1, सो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन n log y। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, x डैश विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एन वाई, क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y, तो 1 अपॉन एन वाई हो गया। x डबल डैश डिफरेंशिएटेड अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस 1 अपॉन एन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 1 अपॉन एन वाई स्क्वायर, क्या मैं इस टर्म को कुछ लिख सकती हूँ? वाई स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो e टू द पावर 2nx आएगा, तो इसे लिख सकते हैं माइनस e टू द पावर माइनस 2nx अपॉन n। अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है? x डबल डैश y डबल डैश का मल्टीप्लीकेशन। x डबल डैश हमारे पास ये है, y डबल डैश हमारे पास ये टर्म है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में टर्म आ जाएगी माइनस एन इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? डी ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपके कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5। बिल्कुल सेम इसी तरीके से होंगे जिस तरीके से हमने अभी प्रीवियस वाले एग्जाम्पल्स करके देखे हैं। अब हमें कुछ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से हम nth डेरिवेटिव करते हैं। अभी हमने पढ़ा है y, y1 और y2 में रिलेशन, दैट मीन्स y का डिफरेंशिएशन एक बार करा तो y1 आ गया, y का डिफरेंशिएशन दूसरी बार करा तो y2 आया, थर्ड टाइम आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? y3, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो y4। इस तरीके से क्या हम इसका nth टाइम डेरिवेटिव कर सकते हैं? कर सकते हैं, nth डेरिवेटिव हम कर सकते हैं। किसी फंक्शन का अगर एग्जिस्ट करता है तो हम nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के कुछ रिजल्ट्स हैं, क्योंकि हम हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर करके बार बार नहीं देख सकते, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन बने हुए हैं जिनका हमें रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो वो याद रखने के लिए हमें ये nth डेरिवेटिव पढ़ने पड़ेंगे। तो nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, पहला स्टैंडर्ड फंक्शन है, अगर फंक्शन हमारा इस फॉर्म का हुआ ax प्लस बी टू द पावर m, ax प्लस बी टू द पावर m। अब यहाँ पर a और b चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके पास आ जाए 2x प्लस 3 टू दी पावर 7, तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में कंपेयर करके। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है वो मैं बताती हूँ। सपोज आपके पास इसे आपने लेट कर लिया y इक्वल्स टू ax प्लस बी टू द पावर m, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए एक बार, क्या मिलेगा? y1 इक्वल्स टू m इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस 1, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा? a। एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं, m तो ऐसे ही रहेगा, पावर फिर दोबारा नीचे आ जाएगी m माइनस 1, ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस 2, और जब हम अंदर वाली टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक और a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। सिमिलरली हम निकालेंगे y3 होगा m इंटू एम माइनस 1, m माइनस 2, ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस 3, और ये हो जाएगा a की पावर 3। हम फोर्थ टर्म इसी को देख के एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या होगी। y4 क्या होगा? m इंटू एम माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस 4, a टू द पावर 4। So can I write this yn? Yn means differentiation of this y with respect to x n times. तो ये हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर m रख दिया, अगर मैंने yn टाइम डिफरेंशिएशन करा
तो ये कहाँ तक जाएगा आप देख सकते हैं, अगर 3 बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे आप तो m-2 तक गया था, ठीक है। अगर n बार डिफरेंशिएशन करोगे तो उससे एक कम तक जाएगा, दैट मीन्स m, m-1, m-2 एंड सो ऑन, m माइनस ब्रैकेट में n-1 टाइम तक जाएगा, दैट मीन्स यू कैन राइट m माइनस n प्लस 1. ओके, सो ax प्लस बी टू द पावर m माइनस n, पावर n कम हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं 3 से, यहाँ पर 3 था तो 3 पावर कम हुई थी, और a की पावर n आई थी, यहाँ पर a की पावर 3, तो यहाँ पर a की पावर क्या आ जाएगी, a टू द पावर n. इस फैक्टोरियल नोटेशन को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये 1 2 3 तक जाता है, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, है ना। फैक्टोरियल एक एक कम करते चले जाते हैं तो हम कहाँ तक जाते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक. तो इसने क्या किया, ये वाली चीज कन्वर्ट करके किस में लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n. इसे आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि मैं इस टर्म को कैंसिल जब करूंगी, कुछ टर्म सॉल्व करूंगी तो मुझे यही टर्म वापस मिलेगी, ठीक है। फैक्टोरियल m को हम क्या लिख सकते हैं, m से स्टार्ट करके 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसे कहाँ से स्टार्ट करोगे, m माइनस n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो कुछ टर्म की मल्टीप्लाई कुछ टर्म की डिवाइड करके हमें क्या मिल गया, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n. एंड फॉर्मूला हो गया ax प्लस बी टू द पावर m माइनस n इंटू ए टू द पावर n. यानी आपको किसी भी फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन का बाइनरी टाइम डेरिवेटिव करना है तो आपका फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n इंटू ए टू द पावर n ax प्लस बी टू द पावर m माइनस n. सो दिस इज द फॉर्मूला. ये आपको नोट करके रखना है, एक जगह आपको फॉर्मूले लिख के रखने हैं, नोट करके रखने हैं. नेक्स्ट, इससे कुछ डिडक्शन मिली है. डिडक्शन में क्या हो सकता है, ये जो m है वो कभी नेगेटिव हो सकता है, m की वैल्यू सपोज ax प्लस बी टू द पावर -3 हो, तब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है. कभी कभी हमारे पास हो सकता है कि m की वैल्यू n के इक्वल हो, यानी जितनी पावर है उतनी टाइम ही हमें डेरिवेटिव करना पड़े. तो ये कुछ डिडक्शन है जो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आते हैं. अगर m की जगह n रखें, हम m की जगह n रखें तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1. d to the power n ax plus b to the power n will be equal to factorial n into a to the power n. In particular, if you want to do the differentiation of x to the power n at time, you will get factorial n. आप चेक भी कर सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x. एक डी बाहर ही है, दोबारा डिफरेंशिएशन करिए तो क्या मिलेगा, 2. दैट मीन्स फैक्टोरियल 2. अगर आपको फैक्टोरियल 2 के तरीके से भी समझ नहीं आया तो आप ये कर सकते हैं, डी क्यूब एक्स क्यूब लेके चलिए. जितनी इसकी पावर है फंक्शन की उतनी बारी हमें डेरिवेटिव अगर करना पड़ गया तो हम क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव एक बार 3x स्क्वायर, डी स्क्वायर बाहर. अब इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो आप देख सकते हैं 3 इंटू 2 एक्स, और एक डी अभी बचा हुआ है, डिफरेंशिएशन एक बचा हुआ है अभी. जब आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स फैक्टोरियल 3. तो ये आपको समझ में आ गया, डी टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n. आगे कैसे, अब अगर m की जगह आप माइनस p रखेंगे तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है. अगर हम m की जगह -1 रख दें तो हमारा फॉर्मूला डिड्यूस होके ये बन जाएगा, -1 टू द पावर n, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 a टू द पावर n. And if m is less than n, then d to the power n ax plus b to the power m is 0. ये कैसा है, आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके पास m है जो कि लेस देन n है, या मतलब डेरिवेटिव आप ज़्यादा बार कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर डी स्क्वायर करना है और यहाँ पर x की पावर 1 ही है, कम है. यहाँ m कितना है बेटा, 1. m की वैल्यू है आपकी 1 और n की वैल्यू है 2, विच इज़ n की वैल्यू ग्रेटर देन m है. तो यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव करेंगे x का 2 बार, तो पहली बार में डेरिवेटिव करके इसका आएगा 1 का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 0. तो ये
ऑलवेज ट्रू है आपका। यहाँ पर भी अगर मैं डी टू द पावर 4 कर देती और एक्स क्यूब कर देती तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आता, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 के बाद एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, तो यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो दीज आर द रिजल्ट। अब हमारे पास फंक्शन कैसा हो सकता है, e टू द पावर ax टाइप का, ठीक है। तो उसका है ना डेरिवेटिव कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। y इक्वल्स टू e टू द पावर ax लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन सक्सेशन। सक्सेशन मींस एक के बाद एक, y1 निकालो, फिर y2 निकालो, फिर y3 निकालो, एंड सो ऑन yn। So y1 will be equal to a into e to the power ax, y2 डबल डेरिवेटिव, एक तो a था ही, दोबारा डिफरेंशिएशन करने पे एक और ही मिलेगा, a स्क्वायर e to the power ax, y3 equals to a cube e to the power ax. Similarly, we have yn equals to a to the power n e to the power ax. So the differentiation of e to the power ax and a derivative of this function will be equal to a to the power n e to the power ax. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करके रखना है। नाउ नेक्स्ट है आपका n a derivative of a to the power mx. Let y equals to a to the power mx. हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x। a टू द पावर x का हमें डिफरेंशिएशन पता होता था कि हम क्या लिखते थे, a की पावर x log a, यही होता था डिफरेंशिएशन। यहाँ पर a टू द पावर mx है, तो सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमें चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। सो y1 इक्वल्स टू a टू द पावर mx एज इट इज log a लिख लिया हमने, और mx का डिफरेंशिएशन एक बार करके आ जाएगा m। सिमिलरली सेकेंड जो होगा इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, m स्क्वायर a टू द पावर mx एज इट इज, एक और log a आ जाएगा, दैट मीन्स log a स्क्वायर। Can I write this and a derivative of a to the power mx directly? Yes, yn equals to m to the power n, दो बार करा था तो पावर 2 थी, n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो पावर क्या होगी, m to the power n, a to the power mx log a to the power n. So this is the formula for the n derivative of a to the power mx. In particular, we can write this if we don't have a to the power mx. इसका मतलब हमारा m1 हो गया, m1 हम इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं, तो 1 की पावर n1 a to the power x log a to the power n. So this is the formula. अब हमारे पास फंक्शन ये भी तो हो सकता है कि log ax plus b टाइप का अगर फंक्शन हो तो उसका n डेरिवेटिव कैसे निकालें। नेक्स्ट है n डेरिवेटिव ऑफ log ax plus b, इसका हमें किस तरह से निकालना है, डायरेक्ट तो हम नहीं बता पाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव करके देखेंगे कि कोई टर्म हमारी पहचान की बन रही है या नहीं बन रही है, कि हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया, y1 इज इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, बट हमारे पास x नहीं है, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, और चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a। So a into ax plus b to the power minus 1, इससे हमें कुछ रूल बनाना पड़ेगा दोबारा डिफरेंशिएशन करके। तो हमने देख लिया एक बार डिफरेंशिएशन करके पावर -1 आई है, क्या दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने से पावर बढ़ती जा रही है घटती जा रही है, वो देखनी है हमें। यहाँ देखते हैं y2, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1 बाहर आया, ax प्लस b टू द पावर -1 विल बी इक्वल टू -2, और इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। y3 आपको निकालना है, दैट मीन्स इसका थर्ड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू -1 -2 ax प्लस b टू द पावर -3 a क्यूब। सिमिलरली वी कैन राइट yn को कैसे लिख सकते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, -n+1 तक, ax प्लस b टू द पावर कितनी आ जाएगी, -n a टू द पावर n। यहाँ पर हम देख सकते थे कि यहाँ पर थर्ड टाइम था तो यहाँ पर 2 आया था, तो यानी n हुआ तो n-1 टाइम तक आएगा, ठीक है। तो माइनस ऑलरेडी था आपका, तो -n-1 कितना हुआ,
-n+1 तक, तो इसलिए मैंने -n+1 लिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने n है, कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है। यहाँ पर एक भी साइन नहीं था, लेकिन सेकंड वाले से स्टार्ट हुआ है, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, तो एक कम चल रहा है, तो -1 की पावर n-1, 1 2 3 एंड सो ऑन n-1, ax plus b to the power -n into a to the power n. Can I write this as factorial n-1? Yes, factorial n-1 लिख दिया, ax plus b to the power -n into a to the power n. ठीक है, ax plus b to the power -n को हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला -1 to the power n-1 a to the power n factorial n-1 upon ax plus b to the power n. नेक्स्ट है हमारा nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b। ओके, सो y आपके पास है साइन ax प्लस b। y का डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार अगर, तो y1 विल बी इक्वल टू a cos ax प्लस b। cos ax प्लस b को हम साइन की टर्म में कैसे लिख सकते हैं? cos थीटा विल बी साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो हमने इस वाली टर्म को साइन की टर्म्स में लिखने के लिए पाई बाय 2 इसमें ऐड करना पड़ा, तो y1 will be equal to a sin ax plus b plus pi by 2. Again differentiating with respect to x, y2 will be equal to a square cos ax plus b plus pi by 2. फिर हमें साइन में वापस कन्वर्ट करने के लिए एक और पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा इस टर्म में। पाई बाय 2 ऐड किया, ax plus b प्लस 2 पाई बाय 2। थर्ड वाली टर्म में क्या आएगा? a क्यूब साइन ax plus b प्लस 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये रहा हमारा y3 आ गया। सिमिलरली वी कैन राइट yn एज n पाई बाय 2। तो हमें पता चल गया डायरेक्ट फॉर्मूला, साइन ax प्लस b वाली अगर टर्म है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा a टू द पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। और in particular if a equals to 1 b equals to 1 a equals to 1 and b equals to 0, so a की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर n 1 sin x plus n pi by 2 in particular answer. This is the answer if you want to differentiate sin x nth time with respect to x. नेक्स्ट सिमिलर है, जैसे हमने साइन का किया सिमिलरली हमें कॉस का करना है। यहाँ cos ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ए साइन ax प्लस बी। इसे हम लिख सकते हैं a इंटू कॉस ax प्लस बी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि हमें पता है cos पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये कवर हो जाएगा हमारा। y2 विल बी इक्वल टू a स्क्वायर कॉस ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाय 2। y3 will be equal to a cube cos ax plus b plus 3 pi by 2. Similarly, yn will be equal to yn is what? Nth time differentiation of cos ax plus b will be equal to a to the power n cos ax plus b plus n pi by 2. Or in particular, when a equals to 1 and b equals to 0, this is the formula. Seventh derivative, this is the seventh formula, nth derivative of e to the power ax sin bx plus c. अब ये भी तो हो सकता है हमारे पास कि फंक्शन डायरेक्ट साइन ax प्लस बी फॉर्म का ना हो, या फिर सिंपल e टू द पावर ax फॉर्म का ना हो हमारे पास, इनकी प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है इसे? y हमने ले लिया, y इक्वल्स टू e टू द पावर ax sin bx प्लस c। डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, देन दिस फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ये आ गया कुछ हमारे पास डिफरेंशिएशन करके। अब इसमें क्या किया है, a की जगह r cos फाई रखा है और b की जगह r sin फाई रखा है, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय a।
y1 will be equal to r e to the power ax cos pi sin bx plus c plus sin phi cos bx plus c। ये क्या हो गया आपका cos a sin b प्लस sin a cos b, है ना, sin a प्लस b का फॉर्मूला। तो आप इसे लिख सकते हैं sin bx प्लस c प्लस 2 phi। ये हमने लिख दिया 2 phi तक। इस वाली टर्म को हमने लिख दिया r e to the power ax एंड sin bx प्लस c प्लस पाई। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 2 पाई हो जाएगा 2 phi, और y3 तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 3 phi होता चला जाएगा। इसी तरीके से nth टाइम जब हम प्रोसीड करेंगे इस प्रोसीजर को तो यहाँ पर पावर्स r की बढ़ती चली जाएंगी, r to the power n e to the power ax sin bx प्लस c प्लस n phi। तो nth डेरिवेटिव इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं r की पावर n e to the power ax sin bx प्लस c प्लस n phi, जहाँ पर r क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू द पावर 1/2 एंड फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय a। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज करना है। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनमें ये सब फॉर्मूलेज यूज होंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। एग्जांपल 1, फाइंड द nth differential coefficient of log ax plus x square। क्या हमारे पास अभी भी तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जो डायरेक्ट इस टाइप का हो? नहीं है। हमने अभी लॉग में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हमने log ax प्लस b के लिए, log ax प्लस b के लिए 4th नंबर पे पढ़ा था हमने log ax प्लस b के लिए। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता ये कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे थोड़ा सा उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बाय टेकिंग x एज कॉमन। x कॉमन लिया तो ये हमारे पास हुआ log x इंटू ए प्लस एक्स। मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ log m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, so log x plus log x plus a। Now direct differentiating n times with respect to x, we have dn upon dx to the power n log x। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हुई 1 और b की वैल्यू क्या हो गई 0। इस वाले में nth टाइम हमें डिफरेंशिएशन log x प्लस a का करना है। यहाँ पर a की जगह क्या है, एक तरह से 1, और b की जगह क्या है, यहाँ से अगर देखें तो इस कंपेयर करने पे b की जगह हमारे पास a है। फॉर्मूला था हमारे पास -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू a टू द पावर n, a इज 1 टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n। तो ax प्लस b टू द पावर n यानी x की पावर n प्लस सिमिलरली -1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 1 टू द पावर n कैसे लिखा, क्योंकि a की वैल्यू 1 थी, x प्लस a टू द पावर n। इससे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, -1 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन, फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉमन, तो हमारे पास आया 1 अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस a टू द पावर n। दिस इज द आंसर। Now next question is example 2, if y equals to cos cube x find yn। क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा है जो डायरेक्ट cos क्यूब x को लिख सकता है? cos क्यूब x का हम एनी टाइम डेरिवेटिव लिख सकते हैं? नहीं, हमने cos ax प्लस b टाइप का पढ़ा हुआ है। cos क्यूब x किसके फॉर्मूले में आता है? cos 3a के फॉर्मूले में। सो कैन आई राइट द फॉर्मूला ऑफ cos 3a? Yes, cos 3a is equals to 4 cos cube a minus 3 cos a. So this will be equal to cos cube x equals to 1 upon 4 cos 3x plus 3 cos x. Or I can write this cos cube x as y. So we have function y equals to 1 upon 4 cos 3x plus 3 cos x. अगर यहाँ आप कंपेयर करें ax plus b से, so what is a here? a is 3, यहाँ पर a क्या है आपका, a की वैल्यू 1, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर भी b की वैल्यू 0। सो हमें एनी टाइम डेरिवेटिव निकालना है, दैट मीन्स 1 अपॉन 4 एंड डेरिवेटिव ऑफ cos 3x प्लस 3 कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है,
कॉमन हो गई, e to the power n upon dx to the power n cos x. Now differentiation of this function at a time will be equal to a to the power n, that means 3 to the power n cos 3x plus n pi by 2. एनी टाइम करना है तो n pi by 2 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 1 to the power n हो जाएगा यहाँ पर cos x plus n pi by 2. This is equals to 1 upon 4 3 to the power n cos 3x plus n pi by 2 plus 3 into cos x plus n pi by 2. This is the answer. एनी टाइम डिफरेंशिएशन करके हमारा ये आंसर आ गया है. Now the next question is find the nth differential coefficient of e to the power x sin cube x. अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो गया है, लेकिन हमने लास्ट फॉर्म जो पढ़ी थी वो इस टाइप की थी, e to the power ax sin bx plus c. और ये फॉर्मूला वर्क करता है e to the power ax cos bx plus c के लिए भी. ठीक है, सबसे पहला हमारा काम है इसमें a देखना. a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1. यहाँ पर हमारी टर्म sin bx plus c की फॉर्म में नहीं लिखी है, सो कैन आई राइट दिस sin क्यूब x इन टर्म्स ऑफ sin 3x. sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a minus 4 sin cube a. So I can write sin cube x as 1 upon 4 3 sin x minus sin 3x. So y is equals to e to the power 3x and sin cube x is 1 upon 4 3 sin x minus sin 3x. अलग अलग कर लेंगे इसे हम. अलग अलग करने के बाद ये हमारी टर्म अलग अलग टाइप की हो गई. यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0. यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 0. इसमें हम क्या करते थे, y n निकालना है 3/4 तो एज इट इज रहेगा. e टू द पावर nx ये एज इट इज रहेगा e टू द पावर x. a square plus b square to the power n by 2. a square is 1, b is 1, 1 square plus 1 square to the power n by 2 sin x plus n tan inverse b by a. b is what 1, a is what 1, so tan inverse 1 minus 1 upon 4 e to the power x sin 3x का अब हमें एनी टाइम डिफरेंशिएशन करना है. a की वैल्यू 1, यहाँ पर b की वैल्यू 3, so 1 square plus 3 square to the power n by 2 e to the power x as it is sin 3x plus n tan inverse b by a. b is what 3, a is what 1, so this is equals to, after doing calculation we'll get 3/4 2 to the power n by 2 e to the power x sin x plus n pi by 4. and pi by 4 कैसे आया, tan inverse 1 and I can write 1 as 10 pi by 4 and 10 to 10 cancel out. So you will have 5/4 minus 1/4, 9 plus 1, 10 to the power n by 2 into e to the power x sin 3x plus n tan inverse 3. तो ये हमारा हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2. डायरेक्ट हमारे पास फॉर्म नहीं है, हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं वो नहीं लग पाएंगे, तो इसमें हमें किस तरह से काम करना है. लेट x माइनस 1 इज z. इसमें x माइनस 1 को हमने z लेके चले, सो कन्वर्ट करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 1 अपॉन z स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2z प्लस 2 प्लस z स्क्वायर अपॉन 3 प्लस z. पार्शियल फ्रैक्शन में से स्प्लिट किया है, सो इसे स्प्लिट करने के बाद 1 अपॉन जेड स्क्वायर 1/3 प्लस 5z/9 प्लस 4/9 जेड स्क्वायर अपॉन जेड 3 प्लस जेड या जेड प्लस 3 ये लिख लेंगे हम. अब ये जेड स्क्वायर अलग अलग साथ में ले गए, 1/3 जेड स्क्वायर, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, तो हमारा बचेगा 5/9 जेड प्लस 4/9 जेड स्क्वायर कैंसिल, तो 3/3 प्लस जेड.
अब यहाँ देख सकते हैं ये 1/ax प्लस बी टू द पावर समथिंग टाइप का है। यहाँ पर जब हम z की ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे 1/3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 5/9 एक्स माइनस वन प्लस 4/9 एक्स प्लस टू। z की वैल्यू हमने क्या रखी थी एक्स माइनस वन, तो जब रखेंगे तो एक्स प्लस टू बचेगा। ये हो गया आपका एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस पी टाइप का। तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n प्लस वन। ये 3 एज इट इज ऐसे रहेगा। पावर यहाँ पर 2 है, एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर हो जाएगी n प्लस वन, सॉरी n प्लस टू, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑलरेडी है तो n और ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा n प्लस टू। इसका डिफरेंशिएशन होगा, इस वाले में फॉर्मूला लगाएंगे n डेरिवेटिव का, तो हमारा होगा 5/9 -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x माइनस वन टू द पावर n प्लस वन प्लस 4/9, ये a की पावर है, n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n प्लस वन हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन x प्लस टू टू द पावर n प्लस वन। दिस इज द आंसर। अगेन इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है, इसमें हमें क्या करना है, वाई एन फाइंड करना है। डायरेक्ट कुछ नहीं पता है हमें इसके बारे में, डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो हमें पता है कि इसके फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो हमने फैक्टराइज किया इसे, फैक्टर ये आ गए। आफ्टर डूइंग द पार्शियल फ्रैक्शन वी हैव 2/2x minus 1 minus 3/3x minus 1. So this is your y. When you are doing the differentiation of y with respect to x n times, you will get 2 as it is d to the power n 1/2d minus 1, 3 as it is d to the power n upon 1/3x minus 1. इसे कैसे करना है, a की जगह यहाँ पर क्या है 2 की पावर n होगा, यानी देखो 3 a की पावर, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3, यानी 3 की पावर n, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो x के पास जो भी टर्म होती है उसके एक बार डिफरेंशिएशन करा तो एक बार आएगी टर्म, दो बार करेंगे तो 3 स्क्वायर, तीन बार करेंगे तो 3 क्यूब, इस तरह से चलेगा। तो डिफरेंशिएशन करके जो हम फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी पीछे, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, उन्हें लगा के हमारा ये आया 2 इंटू वन माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n 2 to the power n अपॉन 2x minus 1 to the power n plus 1 minus 3 minus 1 to the power n factorial 3 to the power n upon 3x minus 1 to the power n plus 1 -1 to the power n कॉमन है दोनों में, बाहर ले लेंगे। फैक्टोरियल n भी दोनों टर्म्स में कॉमन है तो हमने बाहर ले लिया। क्या बचा, ये 2 था, ये 2 की पावर n, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 to the power n plus 1 upon 2x minus 1 to the power n plus 1. Similarly, 3 to the power n is equals to 3 to the power n plus 1 upon 3x minus 1 to the power n plus 1. क्या इससे आगे हम ज़्यादा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, तो हम यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, एन डेरिवेटिव इसका। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारा, इसमें प्रॉपर्टीज हमें लगानी पड़ेगी और हमें एन डेरिवेटिव निकालना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कितने स्टेप हमें करने हैं। सो हमें वाई एन प्रूफ करना है, वाई एन ये है और वाई आपको गिवन है, ठीक है। तो आपके पास डिवीजन वाला फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन। लॉग एम अपॉन एन क्या होता था, लॉग एम माइनस लॉग एन। हमारे पास लॉग एम अपॉन एन टाइप है, यानी एक्स लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस वन। आप यहाँ पर log ax प्लस बी का क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लिकेशन में भी टर्म है, x मल्टीप्लिकेशन में है। अगर सिंपल log x माइनस वन होता तो आप log ax प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते, बट यहाँ पर x मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम किस तरीके से करेंगे इसे? सबसे पहले हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1/x माइनस वन, अगेन x प्लस वन का डिफरेंशिएशन log x प्लस वन का 1/x प्लस वन, प्लस ये एज इट इज और 1x का डिफरेंशिएशन 1, तो हमारे पास टर्म आ गई 1/x माइनस वन प्लस 1/x प्लस वन प्लस log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1। 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1 + 1 = 1
ओके अब हमें इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमें कितना निकालना है, वाई एन निकालना है, लेकिन एक बार अगर डिफरेंशिएट हो चुका है तो एन तक जाने के लिए मुझे कितने स्टेप और चाहिए। एक बार मैं डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ और एन तक जाने के लिए मुझे कितनी बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एन माइनस वन टाइम। तो एन माइनस वन टाइम मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला एन माइनस वन के अकॉर्डिंग लगा देंगे। जैसे माइनस वन की पावर एन होता था, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन, factorial n minus 1 x minus 1 to the power n, 1 upon ax plus b to the power m। इस टाइप का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा है हमारा यहाँ पर। अगेन माइनस एन वन एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन एक्स प्लस वन टू द पावर एन, क्योंकि आपने एन माइनस वन टाइम तक डेरिवेटिव करा है। एक तो टर्म हमारी पहले सी थी, और एन माइनस वन करेंगे तो वन में जब एन माइनस वन एड होगा तो हमारा क्या बचेगी, पावर एन, तो ये आ गई पावर प्लस। अब आपको देखना है यहाँ पर इस टर्म में log ax प्लस बी टू द पावर ax प्लस बी है। जब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक टर्म कम हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस वन टू द पावर एन माइनस टू, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना आप, फैक्टोरियल एन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन माइनस माइनस वन टू द पावर एन माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन टू द पावर एन माइनस वन। कैलकुलेशन कर लेंगे, फैक्टोरियल एन माइनस टू बाहर ले लिया तो यहाँ पर एन माइनस वन बचेगा, इससे भी एन माइनस वन बचेगा, ये सब मैंने कॉमन ले चुकी हूँ, और माइनस वन टू द पावर एन माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया। कैलकुलेशन करेंगे हमें हमारा प्रूफ मिल जाएगा। सो दिस इज द फाइनल प्रूफ। ओके, दीज आर सम होमवर्क क्वेश्चन। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर वन में हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो इसमें अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तभी हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये होगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन से, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करके आप इसे टर्म में चेंज करना। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम कैसे करेंगे, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करना आप। ठीक है, जब टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करेंगे तो एक फॉर्मूला आपका लग जाएगा और मल्टीप्लाई करके आपकी कुछ टर्म बन जाएगी। ठीक है, फिर ज़रूरत दोबारा पड़ सकती है कि आपको दोबारा टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े, जिससे आपका अलग अलग टर्म्स बन जाए, जैसे आपकी अलग अलग टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है, और फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉस ए एक्स प्लस बी वाला। देख सकते हैं आप, ये तीन टर्म में ब्रेक हो गया है। ऑब्वियसली जब ये दो टर्म होंगी तो दो टर्म बनाएंगे आपकी प्लस टू, यानी टू टर्म आप कर लोगे। इससे कैसे लगाओगे, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला आपको लगाना है। उसके बाद जो टर्म आएंगी उसमें कॉस थ्री एक्स की मल्टीप्लाई कर देना, अगेन आपके पास वो टर्म हो जाएगी कॉस ए कॉस बी टाइप की, फिर फॉर्मूला लगाएंगे आप तो ये टर्म तीन में ब्रेक हो जाएगी, इस टाइप की बन जाएंगी। ठीक है, तो इस टर्म के बाद आपको एन डेरिवेटिव निकालना है, वो डायरेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू दी है sin t, y की वैल्यू दी है sin at। हमें प्रूफ करना है, हमें शो करना है ये वैल्यू। ये करने के लिए आपको y को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो y x का फंक्शन होना चाहिए, तो t की जगह आप sin इनवर्स x कर सकते हैं, या तो y को x का फंक्शन बना लो, तब उसका डिफरेंशिएशन करके कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन, आई थिंक सिमिलर या सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल 6 में, रिलेशन बिटवीन y y1 y2 में। ओके, एग्जाम्पल 5 है हमारा, इसमें भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ध्यान से करना पड़ेगा। जब इसके फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए आई और x प्लस ए आई, ये टर्म ब्रेक हो जाएगी। देन पार्शियल फ्रैक्शन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपको फॉर्मूला है ना डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है, तो हमारे ये आंसर आ जाएगा। आंसर आपके इसके साथ है। नेक्स्ट है इफ y इक्वल्स टू ई टू द पावर x साइन स्क्वायर x, इसे कैसे करना है आपको, साइन स्क्वायर x को
cos 2x यानी cos 2a के फॉर्मूले से आप sin स्क्वायर x को हटा लेंगे, ठीक है। फिर e टू द पावर x cos bx प्लस c वाला फॉर्मूला लगाएंगे यानी डेरिवेटिव का, एंड यू विल गेट योर प्रूफ। ओके, ठीक है, आपको ये सब करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।